Welcome students to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammed Zia and this is possibly the last video in our post-independence history series, or in this we are going to talk about the decade in which Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister. पिछले हम वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से the time period of Vajpayee ji was mostly it was hit by terrorism and the issues of national security. इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से the person who actually changed the economic you know scenario of India, how he when he was finance minister and how he performed as the prime minister. So इसीलिए शुरुआत भी करेंगे तो डॉक्टर सिंह की इकोनॉमिक पॉलिसी से. So as I've told you कि 1991 में finance minister जो थे वो डॉक्टर सिंह and he actually freed India from license Raj and which was basically the source of slow economic growth, corruption and all those factors which were hindering the growth of Indian economy. उन्होंने economy को liberalize किया and this actually speed up the development at a great pace. जब वो प्राइम मिनिस्टर थे he continued to encourage that same approach and he actually enjoyed a widespread success in these matters. उनके टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो चिदम्बरम थे, फिर कुछ वक्त के लिए प्रणब मुखर्जी भी रहे, फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए उन्होंने रिजाइन किया. खैर, so if you will see the time period of Dr. Manmohan Singh as a prime minister, it was this 8 to 9% economic growth rate. 2007 में जब दुनिया कहीं ना कहीं रिसेशन की तरफ जा रही थी, तब इंडिया की ग्रोथ रेट 2 डिजिट्स में भी गई, 10% 9% के आसपास इट वाज hovering. सो दिस वाज ग्रेट. हाउ दिस हैपेंड? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये वो दौर था जब पॉलिटिकल वेंडेटा वाज मिनिमम. मतलब if you will see Vajpayee, he actually continued the economic policy started by PV Narasimha Rao. Same thing, जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट था या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी, इस तरीके के जितने प्रोजेक्ट्स थे वो कंटिन्यू किए गए. ऑल्सो बैंकिंग रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया. फाइनेंशियल सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिस पब्लिक सेक्टर कंपनीज को भी इम्प्रूव किया गया. फार्मर्स के डेप्ट को वेव ऑफ करना उनको एंड प्रो इंडस्ट्री पॉलिसी मींस जो ये नॉन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर वाला गैप है, इसको जैसे कैसे फुलफिल करना है, ये एक बहुत इट वाज समथिंग व्हिच वाज एट द फोकस. इफ यू विल सी कि एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया which actually replaced the sales tax, and that was VAT, value added tax. In 2007 and early 2008, global problem of inflation impacted India. But जब दुनिया भर के बैंक कोलैप्स कर रहे थे, Lehman Brothers in America was the first in this series, which was a big bank and collapsed. Indian banking system and was largely untouched of that. और ये स्टडी करने के लिए फेडरल रिजर्व जो है अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, उसकी टीम जो है वो इंडिया आई थी, दैट हाउ आरबीआई परफॉर्म. सो दिस वाज द स्टेटस ऑफ आवर इकोनॉमी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एसईजेड एक्ट, सो जो ईपीजेड की बात थी उसको लीगलाइज किया गया, उसके लिए एक सेपरेट एक्ट लाया गया इन जून 2005. ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, basically their target was to attract investment into the country and improve the foreign exchange reserves through better exports of goods and services from the country. So EPZ export processing zone को और enhance करके SEZ का concept लाया गया. Healthcare and education में भी like the National Rural Health Mission NHRM and
500,000 health workers actually carried out this mission. नए एम्स बने, IITs बनी, but bigger step was the reservation of 27% of seats in All India Institute of Medical Sciences. So AIMS, IITs and IIMs में और दूसरे इंस्टीट्यूशन में ओबीसी जो कैटेगरी है उनका कोटा 27% किया गया. अगेन a very, though very, small in number, but yes, there were anti reservation protests. On 2nd July 2009, the ministry introduced, central government introduced this Right to Education Act, or 8 IITs were opened in the states of Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Odisha, Punjab, Madhya Pradesh, Rajasthan and Himachal Pradesh. Also जो सर्व शिक्षा अभियान था वो कंटिन्यू किया गया. Programs that include the introduction and improvement of the midday meal को improve किया गया, and somehow it became one of the largest school meal program in the whole world. Rural areas में schools number of schools बढ़ाए गए. So basically this was how we fought illiteracy at that point of time. National security की बात करेंगे. So like that whole POTA, Prevention of Terrorism Act, वो हटा के दूसरा एक्ट जो है वो एंटी टेरर लॉ लाया गया, एंड दैट वाज UAPA, प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. NIA बनी जब 2008 में मुंबई टेरर अटैक्स हुए, so NIA बनी. एंड as there was a need of a सेंट्रल एजेंसी जो कि टेररिज्म से लड़े. आधार, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 2009 में बनी. एंड एक मल्टीपर्पज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जो आई थिंक हर चीज़ में आपको आधार का ज़रूरत पड़ जाती है. तो ये आधार भी वहीं पे शुरू होता है. सबसे जो बड़ा, अगर आप देखोगे कि नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर दोनों जगह terrorism was quite controlled. So this was again good achievement on the grounds of national security. अगर important legislations की बात करें तो नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, की उस दौर में पास हुआ. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आफ्टर they were passed in 2005. Narega was one of the most successful on various aspects in various regions, and RTI, no doubt, it actually became a weapon for most of the people to fight corruption. Cash benefits were also introduced for widows, pregnant women and landless laborers. So जो direct benefit transfer है, इसकी शुरुआत भी मनमोहन सिंह साहब के टाइम पे हुई. प्राइवेट प्रोजेक्ट के नाम पे शुरू हुआ था to some targeted section of population. So this was their right to fair compensation, and ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है वो ये पास हुआ कि जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स और इन चीज़ों के लिए जो ज़मीन का टेक ओवर होता है किसानों से, उसमें उनको फेयर कॉम्पनसेशन मिले और प्रॉपर रिहेबिलिटेशन भी हो. सो दिस वाज ब्रॉट. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई बिलीव वाज the right to education, and it was made a fundamental right under Article 21A of the Indian Constitution. और अच्छी चीज़ थी कि पढ़ने का हक सबको है, और इसे 21A में जब एज अ फंडामेंटल राइट इंट्रोड्यूस किया गया, सो इंडिया बिकेम वन ऑफ दोज 135 कंट्रीज जहाँ पे बच्चे के लिए पढ़ना जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, उसका फंडामेंटल ड्यूटी भी है. मतलब पेरेंट्स की ड्यूटी है, तो सरकार ने उसे राइट भी बनाया. सो दिस वाज देयर. फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करें, सो डॉक्टर मनमोहन सिंह कंटिन्यूड द प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी, जो कि नरसिम्हा राव के दौर में भी थी, वाजपेयी जी के टाइम भी चली, और ही आल्सो इनिशिएटेड पीस प्रोसेस विद पाकिस्तान लाइक वाजपेयी जी. और काफ़ी कुछ हुआ इस दौरान, जो कि हाई लेवल विजिट्स थी. ऑल्दो डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी पाकिस्तान नहीं गए,
लेकिन जो दूसरे इंटरनेशनल समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस होते थे वहाँ पे इंडिया हैड अ टॉक। चाइना की बात करें तो 2006 में चाइनीज प्रेसिडेंट हु जिनताओ जब थे वो इंडिया आते हैं, मनमोहन सिंह जो हैं वो बीजिंग जाते हैं, सो दिस ऑल थिंग्स वाज देयर, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट की जो नाथुला पास था विच वाज क्लोज्ड सिंस 1962 वॉर, वो दोबारा ओपन होता है 2006 में, विच वाज ग्रेट। ऑल्सो 2013 में भी वो दूसरे टेन्योर में भी ही वाज देयर, एंड एक सिस्टर सिटी पार्टनरशिप साइन हुआ था दिल्ली बीजिंग कोलकाता कुनमिंग और बेंगलोर चेंगडू के बीच की, ये दोनों मतलब ये पेयर्स ऑफ सिटीज विल डेवलप एंड पार्टनरशिप विल बी इन दिस, सो ये था यूएस के साथ। इट वाज अ ग्रेट एक्चुअली टाइज विथ यूएस। सबसे बड़ी जो चीज थी और सबसे बड़ा अचीवमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह का यही था, द इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, सिविल न्यूक्लियर डील। क्योंकि इंडिया जो है वो, इंडिया ने हमेशा से कहा कि हम अपने न्यूक्लियर टेस्ट को बंद ही करेंगे, एंड 2006 में जॉर्ज बुश इंडिया आते हैं और ये जो एग्रीमेंट है इसका डिक्लेरेशन होता है, अमेरिकन न्यूक्लियर फ्यूल और टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया को मिलेगी, और इंडिया जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को जो है वो इंस्पेक्ट करने देगा अपने सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स। और फाइनली ये 2008 में ये एनएसजी जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स है और यूएस कांग्रेस सबसे अप्रूवल लेने के बाद फाइनली जो इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील है वो साइन होती है, बिकॉज वी वर लैकिंग सर्टेन supplies from in case of producing energy from nuclear, so ये होता है। एंड एक्चुअली इतना ज़्यादा इसका वो था कि गवर्नमेंट एक्चुअली हैड टू फेस अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, और मनमोहन सिंह साहब ने उसे पास किया, बिकमिंग द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री टू डिफीट अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि इन जनरल ऐसा हुआ नहीं था कभी। खैर आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान और मंगलयान का परमिशन या जो उसको इनिशिएट किया था मार्स ऑर्बिटर मिशन और इन सारी चीज़ों को, वो भी इन्हीं के टाइम पे हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था। इनकी जो सरकार थी उस पर जो हेवी चार्जेस ऑफ करप्शन थे उसने काफ़ी कुछ घेरा हुआ था। द वेरी अनफेमस कोल गेट स्कैम, और जिसमें ये कहा गया कि पीएमओ के पास जब कोल मिनिस्ट्री थी तो जो एलोकेशन था कोल ब्लॉक्स का उसमें करप्शन हुआ है, एंड यू नो दिस वाज देयर। और उसके बाद फिर से ये जो एक नई कोल पॉलिसी प्रेजेंट गवर्नमेंट लेके आई है, इट वाज एक्चुअली इन द वीक ऑफ दिस, देन द फेमस 2G स्पेक्ट्रम। एक्चुअली ये कभी हुआ ही नहीं, हुआ क्या था इस मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुआ नहीं है। लेट्स से आई एम गवर्नमेंट, आई एम टेलीकॉम मिनिस्ट्री, ठीक है। अब तक यहाँ पे ये वाजपेयी जी के टाइम पे कानून बना था कि किसी भी तरीके का कोई ऑक्शन नहीं होगा, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एलोकेट कर दिए जाएंगे। सो 2G स्पेक्ट्रम थे, ठीक है, सरकार के पास रहता है, सरकार ने इसे एलोकेट कर दिया कंपनीज को, ठीक है। और ये सारी कंपनीज को लेट्स से एलोकेट किया सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए में, फॉर एग्जाम्पल जस्ट हाइपोथेटिकल फिगर। सीएजी से अब एज एनी अदर थिंग सीएजी से भी ऑडिट करते हैं, और वो कहते हैं कि आपने इसे एलोकेट क्यों किया, आपने इसे ऑक्शन क्यों नहीं किया। और उनका ये कहना था कि अगर इसे ऑक्शन किया था, इफ ऑक्शन, अगर ऐसा होता तो शायद सरकार को इतने पैसे और मिल जाते। दिस वाज 1,76,000, okay, this is 1,76,000 crore rupees, and I remember it very well. This was actually, you know, इंडियन एक्सप्रेस में या किसी एक न्यूज़पेपर में जब ये न्यू हेडलाइन छपी थी तो जो फ्रंट पेज था, इट वाज एक्चुअली लाइक दिस, स्कैम ऑफ 1,76,000, and the whole, that whole newspaper was like, and
इट अपियर टू बी। और ये अच्छा, ये जो 2G स्पेक्ट्रम का था ना केस, ये इंडियन पॉलिटिक्स का हिस्ट्री का वाटरशेड है। इसके बाद पॉलिटिक्स चेंज होती है। करप्शन के चार्जेस कभी प्रूव नहीं हो पाए, क्योंकि वो इनिशियली कहा गया ये हाइपोथेटिकल फिगर है, और इट वाज। उन्होंने कहा अगर ऐसा होता तो दुनिया में जहां जहां ऑप्शन हुए उस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि इस पे इतना मिलता। सो इट वाज नॉट लाइक कि किसी ने 1,76,000 करोड़ रुपए खा लिया था। ये सीएजी का अजम्पशन था, और ये बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज पे अपने कुछ सिमिलर सॉर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है द फेमस कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम। ये तो खैर सुरेश कलमाड़ी वॉज द चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, और 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, और 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला था, करप्शन था। एंड एक्चुअली इसमें एक बड़ा अजीब सा क्लॉज था। जब ये इसके लिए ना सप्लायर्स और सारी चीज़ों का टेंडर निकलने लगा, तो एक क्लॉज ये भी था कि जो भी कंपनीज इसमें किसी भी तरीके की सप्लाई करना चाहती है, लेट्स से फ्रॉम साइकिल टू टॉयलेट पेपर टू एनीथिंग, वो क्या करेंगे, वो तभी कर सकते हैं जब उनके पास प्रायर एक्सपीरियंस हो ऐसे किसी इवेंट में सप्लाई करने का। मतलब ओनली एक्सपीरियंस पीपल वर कॉल्ड। ऑब्वियसली इंडियन कंपनीज के पास तो था नहीं। लास्ट टाइम हमारे यहाँ ऐसा कुछ हुआ था तो जो है वो 1980s में एशियन गेम्स हुए थे। इस तरीके का कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं, तो कहाँ से आना था। सारी चीज़ें बाहर से आई, बाहर से आई तो क्या हुआ, कस्टम ड्यूटी लगी, और इस पे जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ उठी। एंड लाइक जहाँ जो है, अगर इफ यू टेक दिस फिगर, सो जहाँ 49 करोड़ में काम हो जाता, 45 करोड़ में, वहाँ 140 करोड़ रुपए दिए गए, का पेमेंट किया गया, विच वॉज बेसिकली मतलब बिकॉज, क्योंकि अगर वो कहना चाहिए इंडियन कंपनीज या इंडियन कंपनियों से सप्लाई करती तो इतने कम पे करती हैं, दैट्स ट्रू। सो ये करप्शन तो खैर हुआ था, एंड दिस बिकेम द मेन मुद्दा ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शंस, एंड देन BJP again came to the power under the leadership of Narendra Modi. So this is where I'll stop your post independence part, और कहीं ये जो है ये यहाँ पे इसका the end, and I'll see you in some other lecture series. It was really nice teaching all this. If you have any comments, anything, you can mention that, and if you have any suggestions also, you can mention that too. So have a great time. All best wishes are with you. Keep yourself motivated, keep your spirits high, and stay healthy. Thank you so much.